के साथ। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है मेरे चैनल में। और आप देख रहे हैं द इंग्लिश क्लब की प्रस्तुति। और आज हम देखने जा रहे हैं एक नई टॉपिक को, और टॉपिक का नाम है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हम लोग इस चैप्टर को देख रहे हैं, और आज हम लोग जानेंगे इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। आई थिंक सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा। अभी हमें नारेशन हमारा बचा हुआ है। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज को देख रहे हैं। तो आज हम लोग का जो इंट्रोडक्शन क्लास होगा वो पहले सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। ऐसे हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है कि सेंटेंस क्या होता है। एक कॉमन सवाल आता है हमारे माइंड में कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस। तो सेंटेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी हर्ड द नेम सेंटेंस, द फर्स्ट आइडिया that comes in our mind is that there will be a group of words. Few occasions are there you find there is only one word and it is a sentence. Just like the sentences of command that you often called imperatives, just come, this is also a sentence. There is no group of words, but this is a single word. Go, this is also a sentence, but there is no group of words. But most often the definition does not define with the exceptional rule. The definition comes that bounds most of the situations or the cases. Understand? Means that like man is mortal. You take one example from myth. Sir, there was a man, Ashwatthama, who had been blessed that he would never die. So you can say man is immortal. No. We see whoever has born here will die one day, right? So sentence, the idea that we have in our mind is that is group of words here. Group of words. Sentence is what is? Group of words. And the group of words that has at least one subject and finite verb. Sentence is directly connected with the number of subjects and finite verb. Means any group of words that has minimum one subject and one finite verb. Without subject, without finite verb, there will be no any sentence in English. So presence of subject and finite verb fulfills the criteria of being a sentence. Understand? Means subject and finite verb are the essential things or mandatory to be a sentence, right? So what do you mean by subject? Subject is that is simply that is called doer. The part of the sentence that performs something that is considered that is subject, or simply that or something that performs. It may be somebody, it may be something, right? And finite verbs are the verbs that change its forms according to the number and person of a subject. Means that those verbs that change its form according to the number and person of a subject. Suppose the person is singular number, it takes singular verb. And when we change the person of the subject, means that it becomes plural, the verb takes plural form, right? So in finite verb we understand the certain terms. Already if you go through the analysis of the word finite, finite adjective means limited or certain. Do you know? Finite adjective means certain or limited. And verb is already known for all of us, that an external word. The word verb means we start thinking any activity, any action, just like walk. So you think the idea how a person walks any time, but most probably that is done in either in morning or in the evening. Okay, so external word. So under finite verb, these are the certains. First of all, it includes the V1 form of a verb, V2 form of a verb, and V5 form of a verb. Means a verb has 5 forms: V1, V2, V3, V4, V5. And out of 5, these 3 V1, V2 and V5 are considered finite verb. F stands for finite and V stands for verb. तो ये फाइनाइट वर्ब हम लोगों ने देखा, ठीक है।
अब हमें क्या देखना है कि सेंटेंस को हम अब पूरी तरह से क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स that contain a subject and a finite verb and also gives a complete sense। ये भी ध्यान रखना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा ही होगा, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब तो होगा ही होगा, इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो होता है कि इसका एक अपना सेंस होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट सेंस, या हम लोग इसको मीनिंगफुल सेंस कहते हैं, एप्रोप्रिएट सेंस होंगे। नहीं तो आप इस तरह से आप सेंटेंस कहोगे यू ईट a piece of chalk, ये सेंटेंस करेक्ट है, इस दिक्कत क्या है इसमें, यू सब्जेक्ट है, ईट फाइनाइट वर्ब है, पीस ऑफ चॉक हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन मीनिंगफुल नहीं है, बिकॉज वी नो दैट थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर राइटिंग इज नॉट यूज्ड फॉर ईटिंग। So according to the, if someone just argues, sir yes, but we will mention it here, if it will be you ate a piece of chalk, it will be right sentence or not? It will be by mistake, but every English does not work according to the conditions. Already I have discussed at the beginning, rules and regulations, definitions are made that follows or that what covers most of the situation, general situation। हाँ जनरल सिचुएशन, आप एक कंडीशन करोगे तो नहीं होगा। तो ये चीजें हमने देखा सेंटेंस में। अब मैं आपको बता रहा हूँ, डिफिनेशन नहीं चलेगा हम लोगों के पास यहाँ, अब डिफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ। अब सेंटेंस को हम लोग दो तरीका से क्लासिफाई करते हैं, ये नन पॉइंट है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। जो दो तरीका है हमें क्लासिफिकेशन करने का, वो हम लोगों का सबसे पहला था एज पर मीनिंग, ठीक है दोस्तों। तो एज पर मीनिंग में हम लोगों ने क्या देखा है कि सेंटेंस चार भाग में हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया। कितने भाग में हमने इसको क्लासिफाइड किए? फोर टाइप्स में। जो सबसे पहला हमने देखा उसको क्या कहा? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट की खासियत क्या है कि सबसे पहले सेंटेंस के बिगिनिंग में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फाइनाइट वर्ब होता है और अंत में क्या होगा? फुल स्टॉप। रेस्ट वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं आपके। जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव होगा और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो कोई भी एजर्शंस देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, इट इज स्टेटमेंट। अब हमारे पास सपोज कोई डिवाइस है, सपोज मुझे यही रहा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं होती, ओके, तो हम क्या कहते हैं? इट इज अ पीस ऑफ चॉक। तो इट इज अ पीस ऑफ चॉक यानी जो नहीं जानता इसके बारे में, वो इट इज अ पीस ऑफ चॉक क्या बन गया? हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? निगेटिव। जो सेकेंड हमारा है, ये है हमारा आपका क्वेश्चन जो होता है। क्वेश्चन नाम से ये स्पष्ट है, इसमें कुछ इंक्वायरी की जाएगी आपके बारे में, और इंक्वायरी का मतलब आपको पता है, तो इंट्रोगेट किया जाएगा, आपसे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये होता है सेंटेंस का जो सेकंड काइंड क्वेश्चन, और इसमें हम देखते हैं यस नो क्वेश्चन, और दूसरा हम लोग देखते हैं WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन की थोड़ी बात करें तो इसका रिप्लाई यस और नो में मिलेगा, और WH क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो इन WH वर्ड से शुरू होगा। किससे वर्ड से शुरू होगा? WH वर्ड से। और WH वर्ड्स को हम और क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड। और एक सेंटेंस जैसा कि मैं बिगिनिंग में बातें कर रहा था, ऐसे होंगे जो हमें वर्ब के बेसिक फॉर्म से शुरू होगा, ठीक है दोस्तों। तो वर्ब के बेसिक फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं? कमांड। चलिए थोड़ी सी क्वेश्चन में एक बात छूट गई। क्वेश्चन की खासियत क्या होती है कि जो फाइनाइट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, याद रखेंगे। तो फाइनाइट वर्ब, अब चूंकि फाइनाइट वर्ब में V1 V2 V5 होता है, और अगला पॉइंट क्या बताया था? ऑल ऑक्सिलरी। क्या बताया था? ऑल ऑक्सिलरी। तो यदि आपने ऑक्सिलरी वर्ब लिखे हैं, यदि इस पर फाइनाइट वर्ब के जगह पर आप ये भी इस्तेमाल करते हैं मींस ऑक्सिलरी वर्ब, तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चलेगा। इसके बाद सब्जेक्ट होगा, जो भी सेंटेंस के बाद रेस्ट वर्ड से बिफोर कुछ भी हो सकता है, उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क। तो मेजर डिफरेंट क्या पता चला कि सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन, और पहले सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, बाकी कुछ भी तो स्टेटमेंट। और बेसिक वर्ब का बेसिक फॉर्म V1 से शुरू हो तो क्या होगा? कमांड। और कमांड या तो ORS, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन। एक अलग तरह के सेंटेंस हमें देखने को मिलता है, वो होता है हमारा क्या? जल्दी से बताइए। एक्सक्लामेशन। और एक्सक्लामेशन में क्या होता है कि हम लोग किसी काम के लिए सरप्राइज करते हैं, जैसे आज की क्लास सरप्राइज है, आए और सर पार्टी डिमांड, सर आज की
क्लास में पार्टी, तो जस्ट वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रैंड पार्टी हियर। तो ये आपके लिए सरप्राइज था, कब से वेट कर रहे थे हम लोग। चलिए बॉर्डर को आप रखेंगे ठंडा का। तो ये एक्सक्लेमेशन की खासियत क्या है, सबसे पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से क्या होगा, इंड होगा, और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसका कुछ एक्सप्रेशन होता है जिसमें आप सॉरो देखते हो, कभी कभी दुख होता है, अचानक हमें बैड न्यूज मिलता है हम उदास हो जाते हैं, सैडनेस होता है, कभी कभी गुड न्यूज आता है तो डिलाइटेड प्लस सरप्राइज, हैप्पीनेस, इस तरह की फीलिंग्स आती है, और कभी कभी नफरत वाली भावना कंटेम्प्ट भी होती है, ठीक है। तो ये सारे जो भी फीलिंग्स आती है, अप्रूवल होता है, विक्ट्री वाला जॉय का होते हैं, जॉय खुशी आनंद, तो ये सारे ऐसा एक्सप्रेशन करने वाले सेंटेंस क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेशन। और एक जो दूसरे तरह के सेंटेंस होता है ये होता है एज पर स्ट्रक्चर। यस, कैन यू मेंशन द conventional rule of a statement as per me? means Optative, exclamatory. no, it's not like that. Okay, conventional means a statement that is एक सवाल है कि सर give me the equivalents of the old name, तो statement को that we called assertive sentence, and question is called interrogative sentence, command is called imperative sentence, and exclamation that is exclamatory sentence, and another one is optative sentence। तो optative जो इसमें ब्लेसिंग और कर्स देते हैं, तो optative वर्ड का कोई विशेष नहीं इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसको हम लोग एक्सक्लेमेशंस के तहत ही मेंशन करेंगे, या हम लोग उसको ब्लेसिंग के तहत करेंगे। ऑप्टेटिव वर्ड जो है उसको प्रायोरिटी हम लोग नहीं देते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन। तो एज पर स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या जानेंगे कि इसमें चार हमको दिखाई देगा, ठीक है। एक आएगा हमारा सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस की खासियत क्या है कि कोई भी सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब रहेगा, इसी को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस। और दूसरा हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की खासियत क्या है दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज पीसी और हमारा एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पीसी पर्सनल कंप्यूटर नहीं कहिएगा, एस इज दैट इज सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, तो ये चीज है। और हमारा जो थर्ड होता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है हमारा, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की खासियत है दोस्तों कि पीसी होगा और सीसी होगा, ठीक है ना। हम इसको एज पर स्ट्रक्चर इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। क्या डिस्कशन चल रही है, ओके। सो कंपाउंड सेंटेंस में जो है पीसी और सीसी, ठीक है ना, यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। अब पीसी ऑलरेडी हमको पता है प्रिंसिपल क्लॉज, और हम लाइफ में मिक्सचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किधर मिक्सचर दिखाई दे रहा है, हाँ मतलब दिखाने की जरूरत है। तो लाइफ में मिक्सचर में इसमें कई तरह के इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, मींस वी आर गोइंग टू हैव पार्टी, मींस वी हैव टू डू लाइक स्टॉप दैट। तो मिक्सिंग सेंटेंस में क्या होता है, मिक्स सेंटेंस में जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो मिक्सचर्स में, और ये मिक्सचर केमिस्ट्री का भी विषय रहा है, मिक्सचर एंड कंपाउंड। देखिए हमारे पास कंपाउंड भी है, उसके बाद मिक्सचर भी है। तो मिक्सचर से हम लोग मिक्स किए जिसमें कई तरह को मैंने मिला दिया, ठीक है, और रेशियो सर्टेन नहीं होता था, यही है ना मिक्सचर के डिफिनेशंस में, the combination of substances in undefined ratio या अनडिफाइंड रेशियो। तो मिक्स्ड सेंटेंस हम लोग क्या देखेंगे कि जो मिक्स्ड सेंटेंस होता है दोस्तों, इसमें सबका मिक्सिंग होगा, यानी प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एससी होगा और सीसी होगा। एक इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा फोर बार ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों हम लोग में कि ये जो मैं पैटर्न्स बताया हूँ ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीसी है उसके बाद जी नहीं, पहले एससी भी हो सकता है उसके बाद सीसी हो सकता है, ठीक है, ऐसा संभव है। सीसी जनरली सेंटेंस के बाद में आएगा, इसमें भी यही है, पहले हम एसी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद सीसी भी हो सकता है, उसके बाद पीसी होगा, ठीक है ना। अरे बोतल सीसी करते रहना, देखिए भाई लाइट गर्मी के मौसम है, अच्छा वो अलग आप अब दिखाना चाह रहे हैं, तो अब इतना बड़ा बोतल है जिसके अंदर क्या होगा, छोटा स्प्राइट, हाँ, आ सकता है। तो
जो हमारा सीसी है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज सीसी, ये बड़ा सीसी है, उसमें छोटे छोटे बोतल अट सकते हैं। तो सीसी के तहत सबऑर्डिनेट क्लॉज मेंशन किए जाते हैं। तो आप अंडरस्टैंडिंग हम लोग करेंगे, तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो एक नई सीसी की जरूरत पड़ेगी, वेट करेंगे अनदर पार्टी की। ओके, स्टडी हो या ना हो, एंजॉय में किसी तरह की कमी नहीं होगी। तो आगे मैं बता रहा हूं, एसी हो सकता है, उसके बाद पीसी भी हो सकता है, और इसके बाद क्या होगा, सीसी भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि हमें आपको ये जो मैंने सीक्वेंस बताया वो इसी ऑर्डर में रहेगा, ऑर्डर कहीं भी होता है। तो दोस्तों ये था हमारा सेंटेंस का बेसिक क्लासेस, इंट्रोडक्शन क्लासेस, और हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। और हमारा टॉपिक है इंटरचेंज। तो कैसे इंटरचेंज करेंगे, जैसे एक एग्जांपल पर मैं बात कर रहा हूं, जैसे ही इज वाइट एक सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्मेशंस के तहत हम लोग इंटरचेंज सीख रहे हैं। तो ही इज वाइट को हम लोग कैसे कह सकते हैं कि मीनिंग ना चेंज करें, ही इज नॉट वाइट कहेंगे तो मीनिंग चेंज हो गया। तो हम आपको बताएंगे कि ही इज वाइट को कैसे कह सकते हैं, ही इज नॉट फुलिश। इक्विवेलेंट है ही इज वाइट का। एग्जांपल यदि मैं यहां पर लूं, इट इज विजिबल, ही इज वाइट, ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, अ स्टेटमेंट। स्ट्रक्चर के अनुसार एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, ही सब्जेक्ट इज फाइनाइट वर्ब, ये हमारा रेस्ट वर्ड में हमारा एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस को हम जब इंटरचेंज करेंगे दोस्तों, तो क्या मेंशन करेंगे, ही इज नॉट फुलिश। तो ही इज नॉट फुलिश यही मेंशन किया, तो क्या हमने देखा, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कांस्टेंट, देयर इज नो एनी चेंज फाउंड बिटवीन द दो सेंटेंसेस, बट द स्ट्रक्चर्स, बट द पैटर्न्स of both of these sentences are completely different or changed. So that is called interchange. तो दोस्तों इंतजार कीजिए अगले वो वीडियो की, जहां पर हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज में, तब तक के लिए धन्यवाद, सबको नमस्कार।